Hey everyone, this is Meenakshi Karwa and you're watching Tip with Tales. If you're new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ting 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 so that you get notified whenever I post a new video. So this video is for CA Final Group 1 new course preparation strategy. We'll discuss how to study all the 4 subjects, what strategy to implement for preparation, and how to cover your full syllabus, what materials to refer, and everything which you need to know for preparation of Group 1. Starting with the very first paper, financial reporting. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पूरा इंडेस कर दिया गया है. इट्स बीन होली कन्वर्टेड इनटू इंडेस बेस्ड अपॉन इंडेस. सो इंडेस डेफिनेटली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एफआर. एंड ऐसा हो सकता है कि आज तक हमने सिर्फ एएस पढ़ा था एंड अचानक से जब इंडेस पे आते हैं तो इंडेस सीम्स टू बी अ डिफ़िकल्ट थिंग कंपेयर्ड टू एएस और कंपेयर्ड टू द ओल्ड कोर्स सिलेबस. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ क्लियर योर इंडेस कंसेप्ट्स वेरी वेल. आपके लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे. You'll find Parveen Sharma sir and Sarthak Jain sir's videos on YouTube. They also have their pen drive classes, so you can go for their coachings for FR and specifically for INDES. First, clear all your concepts very well for INDES, then you can easily tackle FR. Coming to the materials, ICI material is always recommended first, but when you are taking coaching from any sir or any faculty, you can use their material as well as ICI material. Along with that, try to solve maximum practical questions as well as theory questions available from the study material or your classes books or from the past papers, and from wherever you can find questions, just try and practice them. As much as you practice FR, your concepts will build up, your misunderstandings or misconceptions, if any, they'll get cleared. You'll know where you are getting stuck in a question. You'll be able to tackle that, and that is how you'll get a strong grip on the subject. Practical subject like FR and SFM has to be targeted for exemption to clear your Group 1. So remember, these 2 subjects you have to make very strong with conceptual clarity, with sums practicing, written practice very well, question answers practice, and try to write as much as exam papers like mock test and all. That will help you release your exam pressure and that will help you make a grip on your subject. Next, coming to SFM. For SFM, we have 2 parts, theory and practical. For practical subjects, mergers and acquisitions, portfolio, forex, derivatives, and bond valuation, security analysis. These are most important chapters for practical questions, from where practical questions will be asked, and you have to solve as many questions as possible. For remaining chapters, you have to do theory as well as practical. Both are important. And what material to refer is, you can refer your new course study material, that is ICI material, along with old course PM. This is a very good combo for more questions to practice. Along with that, you will get a different variety of sums to solve, because new course study material is more of theory than of practical sums. So you need practice of practical sums, and that you will find in old PM. SFM की कोचिंग के लिए you can go for Mayank Kothari sir और आदित्य जैन सर. बोथ आर वेल रिकमेंडेड फॉर SFM. यहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको उनकी खुद की बुक मिलेगी. मयंक सर हैज़ हिज ओन कंपाइलर फॉर SFM, तो वो कंपाइलर में भी आपको एक्स्ट्रा सम्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस. सो यू कैन ईदर गो विथ फैकल्टीज बुक्स और यू कैन गो विथ ICI मटेरियल अलॉन्ग विथ ओल्ड कोर्स PM. इन शॉर्ट, कोई भी तरीके से हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर. अल्टीमेटली वी शुड बी फेमिलियर विथ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस and varieties of questions asked by institute, and in what way they can twist the question. Theory, since आपको compulsory होगा एग्जाम में, so you cannot ignore theory. मैंने जो बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बाकी सब्जेक्ट्स में से आप थियोरी भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है. एंड वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल ज़्यादा बोला है उनमें भी थियोरी ऊपर ऊपर से देख के जाना. कोई चांस नहीं लेना है कहीं पे, क्योंकि हमें FR और SFM को एग्जामिशन के लिए टारगेट करना है. एंड जहाँ पे आप एग्जामिशन टारगेट करते हो वहाँ पे आपको छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचता है कि भाई ये छोड़ दिया, ये देखेंगे आएगा तो नहीं देखना है, रिस्क ही नहीं लेना है
बिल्कुल। बस कैसा होता है कि व्हेन यू प्लान फॉर 60 मार्क्स एंड देन स्टडी, तो यू एंड अप गेटिंग 40, and when you plan for 80 to 90 marks, then you end up getting exemption. So keep your targets high. When you have to go for exemption, you have to be very clear with the concepts, with the subject's depth, and what all questions you need to practice, and materials. The materials is very important. You need to access the right material for the right subject and stick to one material. डोंट चेंज विथ एवरी रिविजन डिफरेंट मटेरियल्स। हाँ, ये जगह पे एक अच्छा मटेरियल मिला तो ये भी ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वन डे बिफोर एग्जाम यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट यू हैव टू रिवाइज। आप उस टाइम पे 10 मटेरियल एक साथ बैठ के रिवाइज नहीं कर सकते हो, वो 1.5 डेज में टाइम बहुत ही कम रहता है, एंड आप एक ओल्ड कोर्स की पीएम भी पूरी कर पाओ उतना टाइम भी नहीं रहता है। सो एक ही मटेरियल पे स्टिक करना। अगर आप फैकल्टी की मटेरियल ले रहे हो तो वहाँ पे जाइए, आईसीआई की मटेरियल है तो ओल्ड कोर्स पीएम और आईसीआई मटेरियल पे जाइए, और कोई और मटेरियल्स है, कोई और आपके पास स्टडी पैटर्न्स है तो उस पर स्टिक रहे, लेकिन एक ही जगह पे स्टिक रहिए। हर बार मटेरियल्स चेंज मत कीजिए, दिस विल लीड टू मोर कन्फ्यूजन, एंड आपको लगेगा कि मैं और क्वेश्चन देख लूँगा, लेकिन उसके लिए जो पहले किए थे वो रिवाइज होंगे नहीं, एंड यू विल एंड अप फॉरगेटिंग द कंसेप्ट्स। सो डोंट डू दैट, स्टिक टू वन मटेरियल. Next, coming to audit. Audit is almost similar to the old course syllabus, so you can go with my old course strategy. Here is a very logical strategy for audit. When you see essay, company audit and professional ethics, these 3 chapters covers the 60% of syllabus for audit, and these 3 chapters covers 60 to 70% of weightage of exams. So you know that you are doing the maximum portion already when you are done with these 3 chapters. So make sure these 3 chapters are covered very clearly by you, not just कि एक बार का ऊपर से उड़ा दिया या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं सिलेबस का भी और जो एग्जाम में आने वाला है उसका भी। So these 3 chapters are to be done first, and very conceptually you should be clear with these 3 chapters. Next are small chapters. You have to analyze weightage of these chapters, analyze the trend of questions asked in exam from these chapters, and then decide accordingly which chapters are you going to give more importance. You will notice few chapters are like very rarely asked in exams, or asked only in 1 to 2 attempts, that too for 4 marks. So those chapters are time consuming, though they are small chapters, but you need more of memory capacity to memorize them, to retain in your memory, and to revise 1.5 days before exams. Then only they will be fresh, क्योंकि आप जो उस दिन रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में वो ही क्लिक होगा, क्योंकि वो फ्रेश होता है। आपको 2 महीने पहले पढ़ा हुआ थियोरी में कुछ याद नहीं रहने वाला। सो दीज चैप्टर्स आर टाइम कंज्यूमिंग, दो दे आर स्मॉल, बट सो हेंस वी नीड दिस एनालिसिस कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। सी ऑडिट इज़ नॉट अबाउट यू हैव टू डू 100% एंड देन यू थिंक दैट यू विल गेट 100% इन एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट में वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स एंड वी आर बाउंड टू फॉरगेट थिंग्स बिकॉज इट इज़ थियोरी। तो उसके लिए आप जितना पढ़ रहे हो, whatever you are studying, that should be 100% clear and concrete in your mind, and rest of you can either leave an option or you can go through with a lighter note, because whatever you have studied, when you are very firm with that thing, even if you attempt 80 marks of the paper very strongly and very clearly with what you have studied, and leave the 20 marks in option or leave the 20 marks of paper, you can still aim around 50 to 60 marks in audit. Why? Because जितना पढ़ा है ना उतना अच्छे से होना चाहिए। 100% मगअप करने के चक्कर में आपने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा तो दैट इज़ वेयर ऑडिट विल गेट यू फ्लंग। सो स्मॉल और रेसिड्यूअल चैप्टर्स के लिए वेटेज एनालिसिस कीजिए और ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और कितना फ्रीक्वेंटली उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देन ओनली गो विद दैट चैप्टर वेरी फर्मली। अदरवाइज जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, सब चैप्टर्स नहीं है, छोटे चैप्टर्स में भी कम से कम 10-15 चैप्टर्स हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 to 3 चैप्टर्स जो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो चैप्टर्स।
Coming to the material, Pankaj Garg's scanner book is what I am referring and which I will also recommend to others कि आप भी वो यूज़ कर सकते हैं. एंड ओल्ड कोर्स का PM भी आप देख सकते हैं क्योंकि न्यू कोर्स में क्वेश्चंस नहीं है. थियोरी जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चंस नहीं है, तो ओल्ड कोर्स का PM में से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, और या फिर आप स्कैनर ले सकते हैं पंकज गर्ग सर का. क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सिर्फ थियोरी पढ़ के जाने से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने नहीं होगा, क्योंकि जब सिर्फ थियोरी पढ़ के जाओगे और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो MCQs तो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस डालते हैं ना वो लोग, तो हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है, बट हमारा आंसर सही नहीं होता है एज़ पर इंस्टीट्यूट, एंड इसीलिए ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलते हैं. बिकॉज हमको लगता है हमारा आंसर सही है बट हमारा आंसर सही नहीं होता है. उसके लिए वी नीड क्वेश्चंस प्रैक्टिस. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, आप ओल्ड कोर्स की PM यूज़ कर सकते हैं. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यू कैन रेफर पंकज गर्ग सर्स चार्ट्स. ही हैज़ हिज ओन चार्ट्स विच आर वेरी समराइज्ड एंड कंपाइल्ड इन अ फ्यू पेजेस. सो वहाँ से थियोरी रिवाइज हो जाएगी और फिर क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेना. सो क्विक हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ऐसे. Past papers or mock test writing papers mandatory for every subject and very important for every subject. वही एक की है जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जहाँ से आपको समझेगा कि आप सच्ची में जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि सिर्फ टारगेट्स कंप्लीट करना है या पढ़ना है उसके सेक से पढ़ाई हो रही है. जो भी आप पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए. तो वो कब पता चलेगा? व्हेन यू राइट अ पेपर. सो वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड टू राइट पेपर्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस सम्स एज मच एज पॉसिबल. उसके लिए इफ़ यू हैव, आई गेस न्यू कोर्स के लिए कंपाइलेशन अवेलेबल नहीं है, बट इवन इफ़ है या फिर आपको कहीं से मिल जाता है टेलीग्राम के चैनल्स पे, तो प्लीज़ डू रिवाइज दोज कंपाइलेशंस ऑल्सो. सम्स प्रैक्टिस होंगे और रिपीटेड सम्स बार बार दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा. Next, coming to law. Law is also almost same with old course. So you can go with Munish Bhandari sir's book and main book as well as handbook. Handbook will be preferable for revision during before exams and second or third revision time. First time पे main book अच्छे से करना है for theory and for question answers as well. उसमें plenty of questions दिए हैं. थियोरी का प्रोविजन कंप्लीट होते ही नीचे क्वेश्चंस दिए हैं. सो वेरी मच प्रेफरेबल वो वाली बुक. यू विल गेट अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द सिलेबस एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस. सो मुनीश भंडारी सर्स मेन बुक एंड हैंड बुक इज़ द मटेरियल. आपको कोचिंग लेनी हो तो भी आप उनकी कोचिंग ले सकते हैं. यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी उनकी. एंड ऑल्सो अगर मुनीश भंडारी सर्स के अलावा कोई चाहिए तो अर्पिता तुलचंद मैम इज़ ऑल्सो वेरी गुड. मैंने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन सुना है उनका. सो यू कैन गो विथ हर बुक ऑल्सो. सेम ही पैटर्न है उनके बुक का भी, थियोरी प्लस क्वेश्चंस है उनके लिए. लास्टली MCQs के लिए आपको कोई बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. ICI के MCQs जितने भी हैं साइट पे वो सब प्रैक्टिस करना. उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग पे ध्यान देना. जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना कोई भी वैरायटी ऑफ MCQ आया तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे. MCQs के लिए बुक्स परचेज करोगे और 2000-5000 MCQ प्रैक्टिस कर लोगे तो भी इंस्टीट्यूट कोई नया MCQ लेके आएगा. सो बुक्स पे टाइम वेस्ट मत करो, आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो और साथ में ICI के MCQs पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि चांसेस है कि वहाँ से वो रिपीट कर सकते हैं MCQs. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. And this is all about the 4 subjects group 1. This series will be in 3 parts. Group 1 का एक वीडियो है, group 2 का part 2 में आएगा and part 3 will be for elective subjects. For all the elective subjects एक अलग वीडियो आएगा. So let me know the feedback of this video in my comments, and if you found this video helpful, please like and show your appreciation, and also stay tuned to this channel for further videos of new course and all other videos. I'll see you in my next video very soon. Till then, take care, keep studying. Bye bye.